share the case in the Parashara light also. Here this Parashara light you can just see in the South Indian chart. Vrishchika Lagna, the second place is occupied by the Kuja and Shani Vakri, retrograded. Third is occupied by the Ketu. Fifth by the Mercury. Sixth by the Sun. Seventh is Sukra. Rahu and Chandra in the 9th. 10th and 11th are vacant, and whereas Jupiter, Guru is retrograded Vakri in the 12th house. This is the Kundali, 23rd April 2018, a male birth, who born near Aurangabad. This is the chart what we are discussing today. For the conveniences, I am showing the same thing both in North Indian Kundalis and South Indian Kundalis. Hope you are able to appreciate the chart. As the people are getting joined, we'll just open the discussion, and we can just make out. And today I would like to make our Ramanacharyaji as the chairperson to give the comments at the end of the session, so that we'll be comfortable. I wish to introduce Sri Ramanacharyaji. He is a renowned KP astrologer, and for him, I think the Kundali what we have given in the Parashara here, the KP significator system, he works mostly on this KP significators and KP charts of the significations, and also the cuspal significators, and also even the house significators, and the planet versus the houses, and here the house versus planets are being given in the chart. You can just see this is the basis of the Ramanacharyaji KP astrology. We are really blessed today to have even the KP astrologer here in this regard. Shall we start with this? Madam Rajalakshmi, Madam, will you please start your discussion? I am keeping here the North Indian Kundali of the Jagannatha Hora. Hello. Yes, madam. You can on the video. Video on. Is it okay, madam? Whether the screen is comfortable for you? Hello? राज्य लक्ष्मी जी जी मुझे बोले। हाँ मैडम, आप केस डिस्कशन शुरू कीजिए। अच्छा पहले मेरे हाँ, से पहले आपसे ही शुरू हो रहा है। इस बार कीर्ति मैडम दिया ना डाटा, इसीलिए आपके साथ शुरू करवा रहे हैं। अच्छा हाँ सर, ये केस स्टडी का मैंने जो किया था बहुत ज्यादा तो मैंने देखा नहीं, मेरा हेल्थ कुछ ठीक नहीं था, फिर भी मैंने जो देखा उससे मुझे लगा कि ये बच्चा अभी 4 साल का है। हाँ 4 साल का, तो इसको मोस्टली शनि मंगल चंद्र राहु ये इन चीजों इनसे ही इनको प्रॉब्लम होगा। और बचपन में आपका वॉइस कट रहा मैडम, योर वॉइस इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। म्यूट हो गया है।
हेलो। हाँ अभी आ रहा है। यस मैडम। जी, हार्ट में होल होने का ये दिख रहा है, या फिर ब्लड से संबंधी कुछ यानी रक्त विकार संबंधी कुछ रोग हो सकता है। और इसके अलावा इसको मुख का रोग, या तो बोल नहीं सकता या आंखों में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा मुख में कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा। ये मुझे लगा कि ये 3 चीजों में से कुछ ना कुछ होगा इनको। ओके, Sudha Rani madam, will you please offer some focus on this? Unmute yourself and start speaking. Sorry, sir. I'm very new to astrology. I thought I'll just join in to learn. Okay, how to that will be fine. Yeah, It will be fine. Swardha madam. नीता नेवलकर, श्रद्धा नाम से। Okay. हाँ यस, बोलो नीता। नहीं आप लोग बोलो ना, मैं सुन रही। नहीं, उन्होंने पूछा है आपका क्या विचार है ये इस पे, जो हेल्थ और इसके बारे में दिया है। सिर्फ अभी छोटा बच्चा है तो हाँ। हेल्थ के बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, इसका स्नायु विकार का प्रॉब्लम हो सकता है। आप रिजल्ट बोलने से आप देखिए मैडम, अभी ये हमें डिस्कशन चल रहा है। आप हाँ, ये नतीजे पे आप कैसे पहुंचे हैं, हाउ यू रीच दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। हाँ, अगर उसका यदि कारण। आप वैसी कारण बोल पाए तो बाकी लोगों को आधार होगा ना। हाँ वो सही है। नहीं, आप किस मैं नेक्स्ट देखिए, टाइम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं अब अभी जैसे आप payment जो ना- नतीजे पे पहुंचे, किस कारण, किस वजह से, या किस ग्रह के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से आप ऐसे नतीजे पे पहुंचे। दिस इज से ये किसी का कोई एग्जामिनेशन नहीं है। नहीं वो तो है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग ए केस, ताकि हम इसके बारे में जो भी अपना मेधस को थोड़ा सा और भी शार्प हाँ, करें, हाँ, और अलग अलग सा विचारधारा अपने साथ जुड़े। हाँ, ये जो मैंने बोला था वो अश्लेषा नक्षत्र का पहला चरण है। ओके ओके, शुभ्रा मैडम, हाँ। आप कुछ फोकस करते हैं? सर एक्चुअली व्हाटएवर जो आपने मेरे को पहले वो दिया था ना, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, उसके हिसाब से मेरा दूसरा राशि आ रहा था। सो आई हैड एक्चुअली प्रिपेयर्ड माय सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। ओके एक्चुअली देयर इज नो मच डिफरेंस मैडम। नो सर, दैट राशि वाज इनिशियली इट वाज कमिंग सूर्य, फिर उसके बाद वो इसमें राशि केम, सॉरी वर्गो आ रहा है सर अभी उसमें। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसमें दशा वगैरह देख के मुझे थोड़ा इजी रहता है सर बताने में। I mean, I am not a very expert, but you know, I just try to learn it's okay from madam. you only. The Yeah. latitude and longitudes, as still I recollect. Okay. It was 75, no sir, and it was given between Aurangabad and in near Aurangabad, between Khalna and some place like exactly, you know. exactly. Yeah. Jalna, so, Jalna. जालना। सो उसमें सर थोड़ा सा मेरा ना गड़बड़ हो गया, तो वो मेरा वर्गो आ गया लग्न, तो सब things went haywire. But madam, whatever I prepared, yeah. मैडम एक बात ऐसा है, अब देखिए, दिस इज 80 डिग्रीज ऑफ द तुला फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, वृश्चिक 3 डिग्रीज करके है। 3 डिग्रीज का मतलब जो भी है, इट इज ऑलमोस्ट 4 into 3 and 3.5 degrees, no? 4 into 3, 12 plus 2, 14 मिनट्स का फर्क आ रहा है मैडम। अच्छा सर। आपका जो डिग्रीज 1 डिग्री का जो भी है 4 मिनट्स, अगर यदि बोले तो भी 8 मिनट्स का ही फर्क आएगा। 77 से 75 आप जो बता रहा है, वो भी आपको 8 मिनट का फर्क ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। एनीवे, वी विल मेक इट आउट। अगर यदि आपके हिसाब से ये जो भी है अभी ये भी मैडम लास्ट में कीर्ति मैडम कंफर्म करेगा वो डिग्री से वो क्या हो रहा है, क्या चीज है। इवन
I have taken it as an Aurangabad because this particular degrees, whatever has been given here, Yes, sir. it is said to be like um, 19.8762 Norton, 75.34. Okay. Yes, sir. 75.34 इसका मतलब जो भी is almost like what we can say is 2 degrees. Maximum is 1.5 degrees. 1.5 degrees में मतलब 6 minutes of the arc difference आएगा मैडम. सर मे बी Okay. मैंने कुछ और गलती की होगी. आई विल हैव टू चेक अगेन सर. Let it be, madam. This is Yes, one thing. Okay. Hmm. Now, Subhash Wage sir join हो गया. Wage sir, will you please Yes, sir. focus on this case? मैं अभी तो सर दूसरी मीटिंग में था, दूसरी मीटिंग से ये मीटिंग में आया Okay. और क्वाइट हेक्टिक रहा आज का दिन, तो मैं इसकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दे पाया. मैं Okay, अभी sir. देख रहा हूँ इसको. अनिल कुमार जी, अमित कुमार जी. Yes. अमित कुमार जी कुछ फोकस करें. लेफ्ट हो गए अमित कुमार जी. ओके. मैं मेरा थोड़ा कन्वीनियंस होने के लिए I just want to go with the from South the Indian chart. North Indian to South Indian chart, and this is of the Parashara light what I am using here. In fact, here first and foremost is the about the health we are considering here. When we are considering the health condition, the Vrishchika Lagna. Vrishchika Lagna people are little hyperactive in nature first and foremost, but they are going to be a little softer but mischievous. The secondly, the sixth lord is the Kuja from the Vrishchika. Here 4 degree 20 minutes has come for me to calculate as Aurangabad. I take the nearest bigger city usually because of taking the benefit of doubt. By calculating exactly the point of the birth time also, we are not so confident of the time of the birth what the person has been provided to us. It is a benefit of doubt, and that's why I always say 3 months before and 3 months after the person is going to be getting the results usually. Now here for the Vrishchika Lagna, commonly the child is hyperactive, 2018 born. Sixth lord is the Kuja. Sixth lord Kuja is posited in the second house Dhanur Rashi. I just go with the first and foremost degrees of the benefits always, all the time. Here the Lagna is the Anuradha Nakshatra. When the person is with the Anuradha Nakshatra, as per my research is concerned, the Anuradha Nakshatra is going to have the Shani influences, and thereafter here the diseases especially related to that of the spine is to be considered at the abdomen, and the limbs are to be more focused here. Here the one is the discoloration is being stated in general, and the color changes or the color like albinism etc are one of the skin problems or most common things are to be seen here. Secondly, the Mars Kuja is for the Majja, which we are considering, and Shani is for the Mamsa. Here the retrograded Shani is associated with that of the Mars and under the retrograded Jupiter condition. The boy is supposed to be a little hefty, overweight person, and secondly, otherwise we in general we call it as one of the condition like bulimia. Excess of the hunger makes the person
to get more weight. And as retrograded Jupiter is here, that's why I am considering this as emaciated instead of overweight. Secondly, the person is to be considered here with the neuromuscular, especially spinal disorder, where the lower limbs are going to be either weak or unable to be get moved, or spina bifida like conditions are going to be there with that person, where the spinal problems are going to be commonly being seen. Here, one more thing, what I am looking here is when the Jupiter retrograded is looking at the 6th place from the 12th. At the time of the birth, also probably the boy has come across with lots of the inconveniences. And when I see the occupation of this Surya in the 6th house, 926 is the Ashwini Tritiya Charana. When the Ashwini Tritiya Charana is there, commonly, as per my research, which I have come across, Ashwini Tritiya Charana is under the Midhuna Navamsha, where the Kuja, Ketu, Buddha, the 3 planets are going to be influencing it. And here the parietal lobes are going to be especially making it out. Here the parietal lobe involvement, that means probability is a birth time injury to the head or capitalization of the head made him to get a little spinal problem or the lower limb problems. This is what my analysis is for especially the 6th house is concerned. Now, Kirti madam will make a comment over it, and she will speak what is the reality and fact of the particular case. बाकी सबका हो गया बताकर? हाँ जी, वागे सर. Vage sir has today बिजी शेड्यूल. अस्त्र संन्यासम, भीष्म बन गया है. आप बताइए कंक्लूजन इसमें केसेस का, बाद में रमणाचार्य सर इसके बारे में फोकस करेंगे. हाँ जी सर. तो इस बालक का जो एक मेन प्रॉब्लम पहले था, जो बाय बर्थ था, 2-3 महीने के बाद वो आपने लोकेट किया है, जो स्किन का प्रॉब्लम था, उसको रैशेस और उसको ट्रीटमेंट चलता है स्किन का, उसका वो रैशेस आते हैं, उसको एलर्जी है ऑयल और ये सब से, तो वो तो आपने बताया. और उसके बाद में अभी 2 महीने पहले उसको आंखों का प्रॉब्लम हुआ था, और आंखों का मतलब वो जो भेंगापन होता है ना, तिरछा देखना, वो दोनों आंखों का. हाँ. तो मैम एक्सक्यूज मी मैम, कृति मैम. हाँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताइए, मेरा नेटवर्क चला गया था. हाँ. उस बालक का जो प्रसाद सर ने बताया, वो स्किन का प्रॉब्लम उसको था बाय बर्थ के बाद 1 महीने या 2 महीने के बाद ही उसको हुआ. बर्थ के टाइम से भी था लेकिन पता नहीं चला. फिर उसका वो जो ट्रीटमेंट हो गया है, उसको बताया गया कि उसको 19 इयर्स तक ये थोड़ी तकलीफ रहेगी, बाकी वो नॉर्मल है. उसका वो सोप और उसका क्रीम अलग रहता है खाली. और उसके बाद में जो राज्य लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा उस पर फोकस किया कि आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है. तो आंखों की प्रॉब्लम फिलहाल 2 महीने पहले उसको हुई, जब उसकी बुध में शायद शुक्र की दशा थी. वो खत्म हो गई अभी. तो उसमें उसको आंखों की प्रॉब्लम, यानी कि किसी को भी नहीं समझ रहा था, लेकिन वो तिरछा देखने लगा था वो, और सर ने एक पर्टिकुलर वर्ड बोला, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं. स्क्विंट मैडम. हाँ, स्क्विंट. तो उसमें उसका वो चल रहा था. उसको धीरे धीरे लोग, पेरेंट्स के ध्यान में आया कि ये ऐसे देख रहा है. फिर दादा दादी वो लोग डॉक्टर के पास लेके गए. तो सर उसको बताया गया था कि इसके पिताजी जो है, उनको कोई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम होगी शायद, उसकी वजह से ये हुआ है, ऐसा बोले थे. कौन बोला मैडम? डॉक्टर, जो डॉक्टर थे ना आंखों के, हाँ, उन्होंने कहा कि
के पिता को, जैसे हाँ। बालक के पिता को कुछ बीपी हाइपर ऐसा रहता था क्या, ज्यादा प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, बीपी, उसकी वजह से ये होता है, क्योंकि हमने रीजन पूछा बोले तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया, ऐसे पेरेंट्स ने बताया। ओके। ये चीज, दो चीज थी, और Okay. ये ऐसा कभी देखा नहीं जाता ना, ये बहुत कम लोगों को होता है ना, स्क्विंट ये ऐसा। कॉमनली हो जाता मैडम, प्राइमरी हाँ। स्क्विंट हो जाता है, दैट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द आई एक्सरसाइजेस। हाँ। नंबर 2, ये जो आपने पिता के संबंधी बीपी रहने से हुआ करके जो बोल रहा है, हाँ। आजकल की पॉपुलेशन में जो 50% ऑफ द मेल्स आर बीपी बीइंग रहता है। हाइपरटेंसिव, बोले तो सभी लोगों को तिरछा नजर होना ही चाहिए। ये जो भी मेडिकल में अभी तक हमने कहीं देखा नहीं, सुना नहीं है। बट वही हमको लगा था सर कि ऐसे बट कैसे हो सकता है। हाँ। बट एज यू आर सेइंग, अगर यदि ऐसा हो, वाघे सर और हम नोट करेंगे और इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे के रिसर्च करेंगे। अभी तक तो मैं कहीं भी सुना नहीं या पढ़ा नहीं। वे बाप को बीपी होने पर जो भी है तिरछा नजर वाले पैदा होता है। दूसरा, मैंने इधर ये जो पंचम स्थान जो भी है, स्पेशली जेनेटिकल और कंजेनिटल एनोमलीज डिस्कस करने के लिए मेरा फार्मूला और जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में जो लिखा है, सबसे पहले चीज मैडम, राहु एसोसिएशन विथ 5th हाउस होना ही चाहिए। आप अगर यदि बोलने के बाद मैं जब एक बार नजर डाला मैंने इसमें, नवांश लग्न में राहु का जो भी है युति है चंद्र के साथ, पंचम स्थान में राहु गुलिका चंद्र एक जगह पे है जो नवांश लग्न में, इसे जो भी सूक्ष्म रूपतः ये प्रॉब्लम होता है। ये चंद्र का जो भी है मदर कंसर्न में होता है। अगर यदि मदर और चंद्र जो भी है लवण रस प्राधान्य पे है, चंद्र लवण रस, अगर यदि माँ ज्यादा नमकीन या ज्यादा नमक अगर यदि खाए प्रेगनेंसी टाइम पे, तब ये राहु का जो भी है, या दैट इज राहु का जहां होता है, मैं ये जेनेटिक्स का बात दे रहा हूं। राहु मतलब जेनेटिक्स और जेनेटिकल जीन्स के ऊपर ये लवण रस का माँ जो प्रेगनेंसी टाइम पे ज्यादा खाने पर जो भी है, उनका जो भी है ड्राई एंड रफ स्किन पैदा होता है। दूसरा, जो भी सारे लवण रस का जो भी बीमारियां आयुर्वेद में बताया गया है वो होने की संभावना है। उसी में जो भी है ड्राई आई सिंड्रोम भी हो सकता है, जो अपधातु या लिक्विड पार्ट, वाटर पार्ट शरीर में कम होने के नाते एक तरह का ड्राई स्किन, ड्राई ऑर्गन सभी डेवलप होने की संभावना है। ये जो भी है मातृज गर्भ समय में अपनी खाने पीने के ऊपर का जो भी एक डाइट शेड्यूल नहीं बनाया और ज्यादा एक ही रस का प्रधान का या लवण रस का ज्यादा खा लिया, उस वजह से ये हो सकता है। बट अदरवाइज स्क्विंट इज नॉट एट ऑल कंसर्न विद दैट ऑफ ए जेनेटिकल प्रॉब्लम मैडम। बट ये आप जब बोलने के बाद आपका विचार से नवांश में भी 5वां स्थान का राहु का युति देखना जरूरी है, ऐसा मुझे भी लगा था। अभी तक मैं जो नवांश में राहु स्थिति का ज्यादा विचार नहीं करता था, क्योंकि आंसर मैक्सिमम कुंडली में राहु स्थिति से ही मालूम पड़ता, पंचम स्थान के युति से। अभी रमणाचार्य जी, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, either of the two languages. You can unmute yourself. Yes, sir. Sir, I'll go according to KP. Yes, sir. Okay, Most sir. welcome. So, I feel his Lagna Sablad, Saturn. Saturn is in the star of Venus. And this Venus is occupying 6th and owning 12th. Sir. That is the reason the health is under discussion. So, this Mars and Saturn both are, especially Mars,
Mars is aspecting by his special site on moon. Eighth. Yes, sir. Eighth. Eighth aspect. And moon is in rat conjunction with Rahu. Yes, of course. So it has a delayed some faculties. I Okay. don't know medical terms. Mhm. Delayed developments in the Delayed. boy. Okay, Delayed developments. right. Mm. So, of course, if we go analyzing each and every planet or everything, it will be connected to something or other. But we have to find out the solution. Yes. So, here, his moon is excellently placed Huh? with good significations. Yes, of course. They are 5, 9, 8, and 11. 9, 5, 8, 11. 11. Yes, sir. So the this boy is below 8 years. That's why he is experiencing all these things. Huh, Balarishtam like that. Sir. But he's soon getting moon's bhukti Hmm. from August 22 onwards. Yes, sir. Hmm. 26 September 2022. 22 onwards. Sir. From that time, that moon bhukti, the advent of moon's bhukti, he will recover from all his ailments. Right, sir. So that's what I feel, sir. Okay. Mhm. That too, Yes. and sixth house, sixth sublord and sun, they are the reason for some skin problem and eye problem. Sir. But that sun is connected to fifth also. Hmm. And in the sub level, sun is in the sub of Jupiter, Sir. and Jupiter is lord of 5. Sir. And sixth sublord is also Jupiter. Sir. He happens to be the lord of 5. Sir. So his health problems are temporary in nature. They are not chronic. Sixth sublord is moon. Jupiter, no? Sixth sublord is Ketu, Moon, Mercury. Sub-sublord is Mercury here. Mars, Ketu, Jupiter, Sun. Mars, Ketu, Moon. If Mars, if it is moon, it is well and good. In I went through this KP star one. Okay, okay. In this, it is Small showing variation once again. if it is a moon, we should be thankful. Right. If the sublord is moon, there is no problem at all. Problem at all. Faster and early and perfect recovery will be there. Only temporarily, if the moon is afflicted in the advanced sign, that is in Aries sign, Hmm. then there would be problem. Right. Hmm. Because moon has arrived into this one sign Yep. and a watery sign, Hmm. and it is a fruitful sign, there is no problem for mind and its developments. Right. If the moon is in the Aries sign, it would have been a case of autism. Right. Yes, of course. Psychological disturbances. Now he doesn't have this. He do not have any such of. No. Actually, the sixth house is with Venus, Sun, and Venus, Sun, and Mars. Mars. Venus, Sun, and Mars, 3 planets are there with, and thereby these 3 planets are influencing the sixth house. Even the Venus is also influencing here the Bhava. When we see it in the Bhava also, Shukra is in the 7th house. Yes, sir. Okay. And 6th Yes. house is the Aries, that is Kuja, Ketu, Chandra. And sub-sublord is the Mercury. Now the Mercury sub-sublord Vimshottari is going on. And in that this Mercury Sun. Mercury is also occupant of 5th. Yep. And lord of 11. Yeah. Nevertheless, he holds 8 also.
Yes, of course. But despite his eighth signification, this fifth occupation is more powerful, and 11th without any occupant, 11th is also powerful. Sir, So Mercury offers recovery. Mercury offers recovery. He's the Dasha Lord is Mercury. Yeah, the Lord is Mercury at present. That is why there not be much problem in the health, but there is some delay. I Delay. feel some delay. That's what the Kirti madam has said. Up to the age of the getting the adult, up to the age of the 18-20, the person is going to continue with the same skin disease, which I have pointed it out. But one thing I just want to have a little clarification. I was expecting a musculoskeletal, neuromusculoskeletal, which is referred to that of the lower spine and lower limbs. Was there any sort of the weakness of the limbs? Weakness of the limbs is because of this Saturn. Sir. Saturn being the sublord of the Lagna. Sir. And Saturn is also in conjunction with Mars. Mars is a Lagna Lord. There is a 10 degrees difference, sir. 10 degrees difference, but nevertheless, 10 degrees difference is there, of course. 10.44. But this Mars is safe because Mars is in the sub of Mercury. Mars is in the sub of Mercury. Mercury, of course. So that too, he is a Lagna Lord. That's why he escaped from the Marsian problems of the health. Okay. Like and the Saturn is in the sub of Venus. Okay. This is the problem. Saturn in the sub of Venus. So this Venus is occupant of 6th. He is in the 7th. 7th, 4 degrees difference. 4 degrees difference, of course. And in the cuspal, of course, because Lagna is 4 degrees, sir. Lagna is 4 degrees and 4.4 degrees 20 minutes is the Lagna, and here 4:41. That's why he went into the 7th. 7th. That's why there is no problem. We can assume 7th only, not 6th. Yep. So is this Saturn, as far as the significations are concerned, Saturn is getting 12th, 7th, 12th, 4th, and 3rd. Saturn is getting the 7th, 2, 7, 3, 4, 12. 3, 4, 12. 3, 4, 12. 12. So here Saturn is not having any improvement houses for health. But 12th house we are looking as an recovery. No, 12th is a recovery house. 4th is a comfort house. 2nd is diet. He is having a satanic diet and satanic comfort. That means a poor comforts are going to be there with him. But Saturn is also influencing Saturn is casting his 3rd sight on the 4th. Here I have one more doubt, sir. The 2nd and 7th are the Markasthanas. When the Saturn is representing 2nd and 7th Markasthanas, what is the percentage of the fatality? Because even the Venus is 7th and 6th, but here the Saturn is representing the 2nd and 7th. When he is representing the 2nd and 7th, will this Saturn is going to be a marka for this particular person? Of course, but because Saturn Dasha he won't get. Okay. He has escaped from that fatality. Of course. Will it be possible? Is there any possible Mercury Saturn? Mercury Saturn. But Mercury as a Lagna Lord
Mars is a Lagna Lord. Mercury is Mercury, 8th and Mercury. 11th. No, Mercury, now he's running Mercury, Mercury Dasha, of course. Dasha, oscillation. Dasha Lord, Dasha Lord, Hmm. this, as far as his Dasha is concerned, is connected to 2, 5, 3, 4, 11, 8. Hmm. Here, expect this 2. The remaining houses are good for longevity. But here the Mercury is having the very less Vimsopaka Bala, 0.83 only. Of course, I don't that area. I don't know. Okay, leave I have it, forgotten all these things. leave it. The question here is, there are Hmm. two more things. One is the Marakasthana, which I was focusing. And apart from this, there is a Badhakasthana. I think This is Rajalakshmi, Kirti madam will focus on the Badhakasthana over the interpretation of the Badhakasthana. सर एक बात मैं फिर से कहूंगी हम्म। कि ये जो आपने बोला ना, उसमें एक बात बताना भूल गई कि ये जब बालक इसकी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी ना, इस बालक के जीवित रहने की ओनली 1% ही पॉसिबिलिटी बताई गई थी। Exactly, madam. 99% ये नहीं हो सकता, या फिर मिसकैरेज होगा, या फिर अबॉर्ट कर लो, ऐसा बताया गया था। Okay. लेकिन 1% पॉसिबिलिटी पे उसकी मम्मी ने हार नहीं मानी और उसने वो बालक को ग्रो किया और वो बहुत अच्छी तरह से हुआ। Okay. तो ये भी बात एक One more आश्चर्य- thing, madam. मैंने जो बताया, at the time of the pregnancy or at the time of the delivery, हम्म, the birth injury, हम्म, जो टाइम पे आने का संभावना, जो कैपट फॉर्मेशन बोलते forceps हैं, या ऐसा कुछ। फोर्सेप्स डिलीवरी से जो होता है, हाँ, वैसा कुछ हुआ क्या? नहीं, जहाँ तक बताया तो नहीं उन्होंने, फिर से ठीक है, आप पूछना बाद में पड़ेगा। पूछ लीजिए। पर ऐसा नहीं, ये सीजर बेबी है सर। हाँ, ओके, राइट, दैट मीन सीपीडी था वो। हाँ, बट क्या होता है मैडम, ये जो सिलेक्शन करके टाइम पे जाने से पहले ही बच्चा बाहर आने की जो कोशिश करता है, तभी कैपट फॉर्मेशन हो जाता मैडम। जैसा कैपट फॉर्मेशन होने के बाद जजमेंट इमीडिएटली अगर यदि नहीं लिया, द बेबी विल गेट द इंजुरी फॉर द हेड। ओके, Okay, right. But after the birth, baby was in the intensive care for some of the days. Is it so? पूछ लीजिए आप वो भी थोड़ा, क्योंकि इमीडिएटली मदर के पास लाया गया है या उनको थोड़ा केयर लेना पड़ा है? लाया गया है उसको, लेकिन हाँ, लेकिन पूछ लीजिए। हाँ, फिर भी कंफर्म करती हूँ, जहाँ तक मुझे पता है लाया गया था शायद। उसको बस बेबी को स्किन का प्रॉब्लम बाद में, जैसे 1-2 महीने का होता है ना, उसके बाद में पता चला। जैसे मालिश करते हैं ना, तेल ऑयल मसाज, उससे उसको तकलीफ होती थी, तब डॉक्टर ने बोला। Boy is having skin sensitivity, madam. He is susceptible for the skin diseases always, all the time. ओके, ओके, अभी बाधक स्थान के ऊपर फोकस कीजिए। राज्यलक्ष्मी जी। राज्यलक्ष्मी मैडम, मैंने देशकांड का देखा था सर, मैं देशकांड का देखा था। वॉइस डिस्टरबेंस हो रहा है मैडम। वॉइस अभी भी हो रहा है? आपका नेट स्टेबल नहीं है, दिख रहा है क्लियर मुझे नहीं आ रहा है अभी। नहीं है, नहीं, बार बार कट रहा है मेरा। ठीक है, अभी अभी आ रहा है सर? ओके 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 सर, मैं दृश्यकांड देखा, मैंने दृश्यकांड, इसका दृश्यकांड सेम आया है, मतलब लग्न और दृश्यकांड लग्न सेम आया है। लग्न दृक्काण लग्न, हाँ, और ऐसा मैंने पढ़ा है कि पूर्व कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, जिनका दृश्यकांड लग्न ये सेम आता है। अच्छा, हाँ, दृश्यकांड लग्न यदि पंचम नवम और लग्न ये 3 आते हैं ना, प्रथम दृश्यकांड द्वितीय थर्ड, ऐसा तो उसमें दृक्कांड D3 लगाया मैडम मैंने इधर। हाँ, वृश्चिक लग्न जो दृक्कांड में भी आया है, वृश्चिक लग्न राहु चंद्र आया है। और जब मैंने कीर्ति जी से लिया था, प्रश्न लग्न में भी मुझे भाग्य में चंद्र राहु दिखे थे, तो मैंने पक्का सोची थी कि पूर्व जन्म का कर्म का फल, वो भी उसमें लिखा है कि पितृवर्गीय शाप, यानी
पितृवर्गीय शाप इसको भोगना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। मेरे पास एक सागी कमलाकर शर्मा का लिखा हुआ एक बुक है सर। ओके ही इज माय हाँ फ्रेंड हाँ उनका साही उनका कमलाकर शर्मा, बहुत अच्छे लिखे हैं सर उन्होंने। उस्मान यूनिवर्सिटी। हाँ मैं उनका पढ़ती रहती हूँ। उन्होंने वर्ग चक्र का बुक उन्होंने लिखा, नहीं कोई तो भी और लिखा है, मेरे पास है बुक। तो सर उसमें आया, मैंने बोलने के टाइम में आंख का जो प्रॉब्लम को मैंने ज्यादा हाईलाइट नहीं किया था, मेरी समझ में नहीं आया था। बट मैंने यहाँ लिखा उसको अंगवैकल्य जरूर, मुख में यानी मुंह में कुछ तो प्रॉब्लम है, आंख का रेटिना का समस्या होगी उसको, ऐसा मेरी बुक में लिखा है। अच्छा, आंख रेटिना का की- समस्या किस विचार से? हाँ उसमें लिखा है सर, दृष्टिकोण में लग्न में जो प्रॉब्लम्स है वो लिखा है उसमें बुक में। ओके तो मैंने वो भी नोट करके रखा था। और पैरों में आप जो बोले, हाथ पैर में प्रॉब्लम उसको आने वाला है बाद में। और जैसे भाग्येश का भी रोल रहता ही है सर। तो चंद्रा राहु कर्क में, तो जरूर ये अभी नहीं तो भी, लेकिन इसको कितने भी आएंगे अष्टवर्ग से मैंने जो देखा, तो ये हमेशा प्रॉब्लम आएगा लेकिन ये ठीक होता रहेगा। ओके यानी इसको ये हर प्रॉब्लम आएगी इसको, ओके क्योंकि इसका शरीर का पॉइंट्स और रोग का पॉइंट सेम है। ओके तो ये उसको यानी भोगते हुए सक्सेस होते हुए आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगा है। बट इसको व्यय स्थान का पॉइंट ज्यादा है, तो हमेशा हॉस्पिटल्स में इसको खर्च करते रहना पड़ेगा। एक्चुअली मैडम व्यय स्थान का 28 आया है, जी बट 34 तो इसमें है, 35 10th प्लेस में है, हाँ 10th सर, प्लेस में लेकिन 35 है अष्टक हाँ वर्ग में। जी तो उस हिसाब से तो वो और भी सर, अच्छा है, इनकम इज हैविंग गुड जॉब एंड गुड एजुकेशन, वैसा तो सर वो लगता ही है। डॉक्टर भी हो सकता है हॉस्पिटल के में ज्यादा रहेगा तो। A chronic patient is a better than a doctor, ये तो सेइंग है ही। तो हाँ मुझे सर, मान के चलना पड़ता है। सर अभी लग्न से व्यय स्थान का पॉइंट ज्यादा आया है, लग्न से व्यय स्थान का पॉइंट ज्यादा है, ओके। एज कंपेयर विथ लग्न। हाँ बट एक चीज है मैडम, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के संबंधी जो भी बोलते हैं, हाँ रवि को कभी भी कारक माना गया है आंखों का। हाँ वही रवि सर, मैं एग्जैक्टली अभी वही कहने वाला अरे था सर कि ये सब लोग जो मिस कर दिए वो एक है कि रवि जो है आंखों का कारक माना जाता है, वो शत्रु स्थान में, आरोग्य स्थान में, जो रोग स्थान है वहां बैठा रोग है। स्थान में वहां बैठा और है। रोगेश जो है वो द्वितीय में शनि के साथ है। रोगेश दीदी के तो शनि के साथ दो है। दो और जो दूसरी बात यह है कि ये सूर्य जो है सर ये उपज स्थान में ये ज्यादा हाँ। बलवान हो जाता है। ऊपर से मेष का सूर्य है, मेष का सूर्य होने से वैसे ही उच्च का हो गया, वो एग्जैक्टली सर। उच्च का हो गया, और उच्च का होने से ये फल बहुत ज्यादा देगा वो। और बनिस्बत इसका ये होना चाहिए कि इसकी दक्षिण आंख जो है वो ज्यादा महंगी, मतलब, पर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि होने के कारण पूर्णतः इसकी दृष्टि नहीं गई। इसको कुछ तो भी अफेक्ट, कुछ लेवल तक वो दृष्टि अफेक्ट हुई, मगर वो चाहे भेंगापन हो या कुछ हो, मगर ये मेरे ख्याल से एक आंख में जरा ज्यादा होना चाहिए बनिस्बत दूसरी आंख के। सर और जो रोगेश है वो द्वितीय स्थान में शनि के साथ, द्वितीय स्थान में तृतीय भाव में है सर, इसलिए भाव का देखिए आप, तृतीय भाव से षष्ठ भाव को चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है। आप जो बोला बिल्कुल सही है, तृतीय भाव से चतुर्थ दृष्टि से। और सूर्य भी जो है अश्विनी नक्षत्र में जो है, केतु के नक्षत्र में है, आप केतु नीचे के भाव नक्षत्र चक्र में वो देखिए, बुरा फल देता है। और भाव चक्र में गुरु लग्न में आ गया है, लग्न भाव में या तनु भाव में आ गया है। गुरु रिट्रोग्रेड गुरु, सूर्य जो है अश्विनी नक्षत्र में है, हाँ, केतु के नक्षत्र में बुरा फल तृतीय देता है। चरण, एग्जैक्टली। इट्स ए ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम और डिस्क प्रॉब्लम होना चाहिए था, बट मैडम बोल रहा है ये स्क्विंट है। ओके, एंड ये फोर्थ दृष्टि कुज का होने के नाते तृतीय भाव से
ये सर्जिकली करेक्ट करने का लायक है। सर्जिकल करेक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एज पर द स्किन प्रॉब्लम इज कंसर्न, सेंसिटिविटी एलर्जी रहेगा ही रहेगा, और ये साथ में जो भी है निकालने के लिए उनको ड्यूरेशन टाइम थोड़ा ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ता है। ये चीज अभी आया है। अगर यदि आप D6 देखें तो इसमें D6 में लग्र का जो भी तुला हो गया है, जो मैडम पहले बोल रहे थे मैंने ये देखा है, D6 में अभी शुक्र बैठा है। D6 से आपको षष्ठम भाव से जो भी है गुरु है, और कुज और गुरु का दृष्टि पे षष्ठ भाव द्वादश से है। इधर भी आप गुरु जब होता है कंडू स्थौल्यम, ये दोनों हम लेते हैं। कंडू का मतलब इचिंग, स्थौल्य का मतलब ओबेसिटी। मैं इसीलिए ये नतीजे पे आया, बच्चा का ओवरवेट भी होने का चांस है। आपने नहीं बताया उसके बारे में। अदरवाइज रिट्रोग्रेड गुरु होने के नाते एग्जैक्टली अपोजिट, टोटली एमेसिएटेड होना चाहिए, अंडर नरिशमेंट होना चाहिए। बट ये बच्चा जो भी है, ये षष्ठ स्थान में जो भी जुपिटर का जो स्थान द्वादश का और कुज के संगात देखने के बाद षष्ठ के देखते हुए इधर लगता है ये मीन राशि हो गया है, ये षष्ठ भाव यहां से। इस वजह से पाद सूजना भी इनका प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज वीक लेग्स, मैंने फर्स्ट जो नतीजे पे पहुंचा है, वीक लेग्स बिकॉज ऑफ द ओवरवेट हो या अदरवाइज मसल वीकनेस हो, ये दोनों के हिसाब से ये होने की संभावना है। ऐसा एक प्राथमिकता है। अभी बच्चा 4 साल का है, इसीलिए हमें आगे ऑब्जर्व करना पड़ता बस। नहीं सर, अभी तक तो बच्चा एकदम अच्छा है, मतलब ओवरवेट तो नहीं है और अंडर नरिशमेंट भी नहीं है। वेरी गुड, नॉर्मल और बहुत अच्छा ऐसा है। हाँ, बट लंबार एंड स्पेशली लोअर लेग्स का ससेप्टेबिलिटी प्रॉब्लम है मैडम। उसके लिए वो लोग थोड़ा केयर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। ऐसा मेरा ओपिनियन है। और कोई इसके ऊपर कुछ? कृपाली मैडम जस्ट जॉइंट। ओके। मेरा सोचने का जो थोड़ा सा मैं अलग वे से ये सोचता हूँ, ऐसा सर। कि ये रोगेश जो है सर, शनि के साथ बैठने से ये जो रोग है जो इंडिकेट करता है, ये रोग जो है ये ज्यादा दिन तक चलेगा, क्रॉनिसिटी लेगा। Yes, और of जब course. भी शनि और मंगल की युति ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती, तो ये इसको कॉम्प्लिकेशंस ऑन एंड ऑफ ये होते जाएंगे आंख के। उसके लिए जाना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल्स, और ये लंबे देर तक चलेंगे। दूसरी बात, वो स्किन की तरफ भी इंगित करते हैं शनि मंगल का, मेरे हिसाब से जो युति होना स्किन प्रॉब्लम की तरफ भी, क्योंकि वो रोगेश भी है इसलिए वो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे भी एक मेरी जो जनरल थिंकिंग है वो मैं ऐसा सोचता हूँ। Anything else to say in this regard? कृपाली जी ज्वाइन किया है? कृपाली ने? हाँ मैडम, बोलो कृपाली जी। हो मैडम, हाँ बोलो। जेवण करतो। खाना खा रही है? हुआ नहीं क्या? Okay. I hope today we had a very fruitful discussion. I wish Ramanacharya ji as a chairman offer the concluding remarks. To conclude, the boy's health is somewhat problematic. Okay. And he needs so much of medical care rather than astrological care. Okay. Okay. सही बात। Okay. Thank you very much, sir. Madam, I'll keep this particular video for the sake of viewing for next 24 hours. Okay. And if at all there is any problem, you can just ask me, and I'll provide the link.
And if at all anybody have any questions, they can raise the questions even regarding. If there are no questions, then we'll be. रूपाली खाना हो गया क्या? क्वेश्चन पूछ सकते हो. कीर्ति जी आप अपडेट लेते रहिए और आगे का कुछ है तो बताते जाइए इस केस हाँ के बारे में। बिल्कुल. मैंने ये जैसे शुक्र भी उसका सप्तम भाव में है. सप्तमेश शुक्र, जैसे सप्तम बोला जाता है कि दृष्टि का जाना, अस्त बोलते हैं ना सूर्य का, सूर्य भी इसका कारक है. और सप्तमेश जो है षष्ठ उसका स्वामी जो है, नक्षत्र जो है उसका वो षष्ठ भाव का है, कृत्तिका. उसका नक्षत्र स्वामी है कृत्तिका, सूर्य, वो षष्ठ भाव में है, अपने से व्यय में. एक ये भी सिंपल फॉर्मूला भी है मैडम, कारको भावनाचाया. कारको विवाह कारक जो भी है शुक्र सप्तम स्थान में रहना गलत हो जाता है. इस वजह से भी वो हम मान सकते हैं he will be having some sort of the matrimonial problems also. Yeah. But it is in the later course. First of all, we are totally health, connected and focusing on only on health issues. only on health. So I'm very much thankful for the one and all those who are here, and this video will be kept for you for next 24 hours in the Zoom, and I'll provide you the password, and you can just see it if all you want. It will be posted in the group also, so that the rest of the people also will be happy to make it out. Okay, thank you very much, and good night. Thank you. And see you next Thursday, 9 o'clock. Yes, Next 9 Thursday, o'clock. 9 o'clock is the better one. Yes. And every Thursday, 9 o'clock to 10 o'clock, only 1 hour, we are limiting. And we Yes. don't want to make the disturbance of the people's sleep patterns also. Okay, good night and thank you Good and night. bye-bye. Thank you, sir. Shubhratri. Thank you.